Hello students, in this video we discuss about the addition of vectors. Okay, in previous video we discussed about the mathematical representation of the vector. So now at that time we start the algebra of vectors, in which first of all we take addition of vectors. Okay, so see on the board carefully, this is the heading of addition of vectors. Okay, uh, uh, जैसा कि आप जानते हैं कि टू एंड मोर देन टू क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए उनकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल जैसे आप 2x को x की x टाइप के नंबर्स में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. जैसे 2x प्लस 3x इक्वल टू 5x. आप 2x को 3x स्क्वायर में ऐड नहीं कर सकते. तो दैट मीन्स आपके जो वेक्टर क्वांटिटीज है जिन्हें आप ऐड करना चाहते हैं, उनकी जो नेचर है वो आपकी क्या होनी चाहिए, सेम. ओके, तो आप देखिए जरा यहां पर टू एड टू एंड मोर वेक्टर क्वांटिटीज the nature of that vector quantities must be same. ओके, मतलब ये हुआ कि उनकी जो नेचर है वो सेम होनी चाहिए. तो यदि एक x टाइप का है तो दूसरा भी x टाइप का ही होना चाहिए. जैसे यदि आपके पास फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स को आप अनदर फोर्स में ही ऐड कर सकते हैं. ऐसे नहीं कि जैसे कि आप फोर्स है, आप फोर्स को वेलोसिटी में ऐड करें. ठीक है ना. तो उनकी नेचर क्या होनी चाहिए, आपकी सेम होनी चाहिए, तभी एडिशन, आपका वेक्टर एडिशन पॉसिबल हो सकता है. ठीक है ना. क्योंकि आपको पता है कि जब आप वेक्टर्स को पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने रिप्रेजेंटेशन पढ़े थे, और रिप्रेजेंटेशन आपके पास दो थे. एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन था, और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से आपने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन डेवलप किया था. तो ऐसा ही हम यहाँ पर करेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल मेथड्स, एंड फिर उससे कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकल मेथड्स. ओके, तो दैट मीन्स वी कैन से दैट देयर आर टू मेथड्स of addition of two vectors. There are two methods of vector of addition of two vectors, two and two or more vectors. Okay, first method is geometrical method, and second method is analytical method or mathematical method. Okay, and this method is very useful for me because in the case of numericals we generally use this method in place of geometrical method. Okay,
तो यहाँ पर हम सबसे पहले ज्योमेट्रिकल मेथड्स को डिस्कस करेंगे और फिर उससे हम मैथमेटिकल मेथड को डेवलप करेंगे, कुछ फॉर्मूलाज डेवलप करेंगे जिससे हम डायरेक्टली एनालिटिकली आपका जो वेक्टर एडिशन होगा टू एंड मोर वेक्टर्स का वो क्या होगा उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस हेयर ज्योमेट्रिकल मेथड्स। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं जियोमेट्रिकल मेथड। In geometrical method, there are three methods. In geometrical method, there are three methods by the help of which we can calculate the addition of two and more vectors. Okay, so we can say that there are three methods to calculate, to find out the addition of two or more than two vectors by the help of geometrical method. Okay, in which first method is first method is triangular law of vector addition, this is first method, and second method is parallelogram law of vector addition, and third is polygon law of vector addition. Okay, so there are three methods to find out the addition of two or more than two vectors, in which first method is triangular law of vector addition, and second law is parallelogram law of vector addition, and polygon law of vector addition. Okay, so in this video we discuss about triangular law of vector addition and parallelogram law of vector addition, and then polygon law of vector addition. Okay, so see on the board carefully, because these three methods will be helps to find out the mathematical tool to calculate analytically addition of two and more vectors. Okay, I think okay, so now start.
फर्स्ट मेथड triangular law of vector addition. Okay, so method first, triangular law of vector addition. This is first method. जी मैम, according to this method, if you have any two vectors like that, this is vector A, suppose vector A, capital A, and second vector is vector B, then the addition of these two vectors or resultant vector of these two vectors will be obtained by this method. देखिए, अब आप क्या कीजिए, एक स्केल की हेल्प से इस एरो की लेंथ मेजर कीजिए और इतनी ही लेंथ का इसके पैरेलल आप यहां पर एक अनदर वेक्टर ड्रॉ कर दीजिए. दिस इज वेक्टर ए. ओके, एंड सेकंड इज दिस इज वेक्टर बी. अब आप स्केल लीजिए और इस एरो की लेंथ मेजर कर लीजिए. एरो की लेंथ मेजर करने के बाद इसके जस्ट पैरेलल आपको यहां इसके एंड पॉइंट से इसे स्टार्ट करना है और उतनी ही लेंथ का इसके पैरेलल यहां पर वेक्टर आपको ड्रॉ करना है. ये आपका आई थिंक ड्रॉ हो गया. क्लियर है ना? चलिए, थोड़ा सा डाउन हो गया है, अब कर दीजिए. आपका डायग्राम भी थोड़ा अच्छा लगेगा. ये आपका वेक्टर बी हो गया. ओके, देन देखिए, आपको बताया गया है कि जो वेक्टर है उसका एक एंड पॉइंट होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है. तो आपको रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है. और आपको मैंने बताया था कि जितने भी हम वेक्टर्स यहां पढ़ रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिकली आपको उनको एरो से शो करना है. तो एरो से शो करेंगे तो हम उन्हें नाम देते हैं कि जब एरो से शो करोगे तो आप एरो का एक एंड पॉइंट होगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा. और एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट किसके होते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के. तो हर वेक्टर क्वांटिटी यहां पर एज ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर काम करेगी. और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटीज में आपको पता है कि रिजल्टेंट का मीनिंग होता है स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पॉइंट. अब आप यहां पर देखिए कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये था, इस एरो का एंड पॉइंट ये हुआ. रिजल्टेंट निकालना है तो फिर आप देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे था, एंड पॉइंट यहां पर. तो यानी कि एट लास्ट आपका जो वेक्टर है, जो भी कुछ है, वो कहां से मूव करना शुरू किया और कहां पर पहुंचा. तो स्टार्टिंग यहां से हुई और फाइनल पॉइंट यहां पर आपका हुआ, स्टॉप हुई आपकी मोशन. तो आप देखिए, तो हम यहां से चले और पहुंचना कहां? एंड पॉइंट पर, यहां पर. तो अब आप देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका पाथ इंडिपेंडेंट होता है. तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका हो गया फाइनल पॉइंट. तो इन दैट केस दिस एरो विल रिप्रेजेंट the resultant vector of these two vectors. Okay, I think आपको क्लियर हो गया होगा. और ये एक तरीके से ज्योमेट्रिकली एक ट्रायंगल की शेप बन जाती है, इसलिए इसे बोलते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ओके, दिस इज द थर्ड साइड ऑफ दिस ट्रायंगल which is denoted by vector r. This will be equals to vector A plus vector B. Remember here that first vector is A and second vector is B. So we take here vector A plus vector B. देखिए, आपको यहाँ पर थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि आप नंबर सिस्टम पढ़ चुके और नंबर सिस्टम आपके जुड़े होते हैं स्केलर क्वांटिटीज से. अभी आपको बताया गया था, तो वहां पर आपने पढ़ा होगा कि 3 plus 2 is also equal to 2 plus 3 because scalar quantities satisfied the commutative law. That means scalar quantities holds good commutative law.
Okay, also you study in mathematics at 12th level. Okay, so remember this point. Here we have no information about this commutative law. तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या वेक्टर a plus b is also equal to vector b plus a. After confirmation we take in any order. Okay, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा. तो हम पहले प्रूव करेंगे और टोटल अलजेब्रा, तब हम कहेंगे कि हाँ यहाँ पर ऑर्डर चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है या पड़ता है, तो कैसे कैसे किन रूल्स को ये फॉलो करेगा. क्योंकि हम अलजेब्रा स्टडी करें उसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. तो स्केलर क्वांटिटीज यानी कि नंबर से जुड़ा है कोई भी रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं कीजिए यदि आप कंफर्म ना हो. ठीक है, तो इसलिए इसे बोलते हैं ट्रायंगुलर लॉ. अब आप इससे बता सकते हैं कि यदि आपके पास दो वेक्टर्स है और में दो वेक्टर किसी ट्रायंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट करे, तो उस ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है वो उन वेक्टर्स के रिजल्टेंट वेक्टर को शो करेगी, जो उनका क्या होगा, एडिशन. ठीक है ना. अब चलिए लिख देते हैं इसकी डेफिनेशन. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, if any two vectors, vector A and vector B, represent the sides of represent any two side, then the third side will represent the direction and magnitude of that the addition or resultant vector of that vectors. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. यदि आपका क्या है कि टू वेक्टर्स आपको गिवन है और में टू वेक्टर्स किसी ट्रायंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो लेकिन शर्त यह है कि जहां पर एक का एंड पॉइंट होगा दूसरा वहां से स्टार्ट होगा. उस कंडीशन में उस ट्रायंगल की जो थर्ड साइड होगी उन वेक्टर्स के एडिशन या रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी. तो ये तो हो गया आपका ज्योमेट्रिकल लॉ, ट्रायंगुलर लॉ. तो डायग्रामेटिकली आप इसे इसकी लेंथ मेजर करके स्केल से डायरेक्शन आप एंगल मेजर कर सकते हैं, तो उससे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी रिजल्टेंट वेक्टर्स की. जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आपके पास है लाइक दैट, जैसे बॉक्स ऑन द ग्राउंड लेवल, एंड a person apply a force along this direction is equal to 5 Newton, and another person apply a force along this direction, this is 8 Newton suppose. Then what is the value of resultant force acting on this object? Since force is a vector quantity which have magnitude and as well as direction, so this follow the vector addition law. Okay,
तो हमें उस कंडीशन में वेक्टर एडिशन लॉ अप्लाई करना होगा और यहाँ पर आप ट्रायंगुलर लॉ यूज कर सकते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना होगा कि इसके पैरेलल एक लाइन खींचनी होगी, इतनी लेंथ की, इतनी इधर की खींचनी होगी, और उसके बाद आपको इसकी थर्ड साइड को स्केल से मेजर करना होगा, तो वो आपका क्या होगा, रिजल्टेंट वैल्यू आपको मिलेगी। तो ये मेथड हुआ आपका ज्योमेट्रिकल मेथड, ठीक है ना। वो कैसे, आप देखिए यहाँ पर इसके पैरेलल आप यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए, ये आपका 5 न्यूटन हो गया। कैसे मेजर करते हैं कि आप देख लीजिए कि 5 न्यूटन आपका 1 न्यूटन आपका 1 सेंटीमीटर के आप इक्वल ले लीजिए, तो 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ये ड्रॉ कर दीजिए, 8 सेंटीमीटर की लाइन ये ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये आपकी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो 8 न्यूटन हो जाएगा। और तो यहाँ से आप इसे यहाँ मिला दीजिए और स्केल से ये वैल्यू आप मेजर कर लीजिए। मान लीजिए कि ये वैल्यू आपकी ये मान के चलिए कि आपकी ये वैल्यू 7 या 8 के आसपास, 9 के आसपास आती है, 7 या 9। तो यदि 9 आती है तो ये 9 सेंटीमीटर की आपको लेंथ मिलेगी, ठीक है ना। तो ये 9 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगी, तो इसका मतलब ये होगा कि ये 9 न्यूटन का रिजल्टेंट फोर्स है। और यहाँ से आप एंगल मेजर करके ये बता सकते हैं कि आपका जो रिजल्टेंट है वो 5 न्यूटन से इतने एंगल पर वर्क करेगा। तो ज्योमेट्रिकली दोनों इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाती है, ठीक है ना। लेकिन हम जब मैथमेटिकल की बात करेंगे तो हम यहाँ मैथमेटिकल टूल अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि इस ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है इसकी लेंथ कितनी होगी। तो लेंथ मेजर करने के लिए आपको कुछ यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करना होगा और वो हम कैलकुलेट भी करेंगे। वही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम्स में ये ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स पूछी नहीं जाती है, ठीक है ना। तो वही मस्ट है, लेकिन पहले इनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसी के बाद आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड मेथड आपका क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो यदि आपको इससे कोई डाउट हो तो प्लीज आप पूछिएगा। सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, इफ यू हैव डाउट प्लीज आस्क एंड कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल और पर्सनल व्हाट्सएप number. Okay, thank you for watching this video.